Hello everyone. I hope I'm clearly audible and visible to all of you guys. So first of all, let me introduce myself. My name is Raviranjan and I'm basically from Bihar. I had a teaching experience of 4 plus years with honors in geology. So today I'm here with all of you guys to discuss very simple and basic topic spermatogenesis. 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 As all of you know, spermatogenesis is a part of gametogenesis in human reproduction. जैसा हम लोग जानते हैं spermatogenesis gametogenesis का पार्ट है human reproduction में. In biology, it is very simple to learn any terminology by breaking down it. So here spermatogenesis made up of two parts, spermato and second is genesis. Basically, genesis is a Greek word which means formation. Formation. Whenever the genesis word comes, it means formation. Formation of what? Here, a sperm. If there was gametogenesis, then it means formation of gamete. Is it clear? Now, in this topic of spermatogenesis, we are going to discuss 3 points. First, where it occurs, the site or location. Site or location. Second, how it, which cells are responsible for formation of it, involvement of cells. Third, how it occurs, the process. So first of all, we are going to start where it occurs. Where does it occur? So let's see. Where does it occur? Where does it occur? ये कहाँ होता है? As all of you know, in human male, testis is primary sex organ. Testis primary sex organ है. And primary sex organ is responsible for formation of what? Formation of a sperm or gamete. So here testes will make gamete or a sperm. So testes. When we are going to see the structure of testes, it shows many compartments within it, which is 250, approx 250 in number, known as testicular lobules. Testicular lobules. जैसे एक ऑरेंज होता है और ऑरेंज में बहुत सारे लोब्यूल्स कंपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे एक टेस्टिस में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स. हम ऑरेंज के साथ टेस्टिस को कंपेयर कर सकते हैं. नाउ when we are going to see one testicular lobules, it shows about 1, 2, 3 seminiferous tubule within it. Seminiferous tubules. Seminiferous tubules within it. 1, 2, 3 in numbers. Like orange, and orange have many lobes or compartment, and each lobe and compartments have 1, 2, 3 seed within it. किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन, like that. We compared testes with orange, just easy to understand. When we are going to see the transsectional view of testes, it shows many compartments within it, which is approx 250 in number. And each testicular lobules have narrow tube-like structure, which is seminiferous tubule, and 1 to 3 in numbers are present there. And this seminiferous tubule is the site of formation of a sperm. Seminiferous tubule is the site where formation of a sperm occurs. Now, when we are going to see one testicular lobules, it shows about 1, 2, 3
seminiferous tubule within it. When we are going to enlarge one seminiferous tubule, take an enlarged section of seminiferous tubule, it shows about cuboidal cells on their base, which is forming their outer layer, known as germinal epithelium. Cuboidal in nature, known as germinal epithelium. Germinal epithelium, known as germinal epithelium. Just within the germinal epithelium, there's a round shaped cells known as spermatogonia. Spermatogonia. In between spermatogonia, there are cylindrical shaped cells known as Sertoli cells. Cylindrical shaped cells known as Sertoli cells. Let's suppose this is the transection view of seminiferous tubule, and the layer from inside, which is outer layer, अंदर से बाहर की ओर germinal epithelium. Just within the germinal epithelium, round shaped cells, spermatogonia, and cylindrical cells in between Sertoli cells, in between spermatogonia, known as Sertoli cells. Germinal epithelium forming the epithelium. Spermatogonia, मम्मी सेल, मदर सेल. जैसे बेबी के बर्थ के लिए मदर रेस्पॉन्सिबल है, सेम हियर स्पर्म के बर्थ के लिए स्पर्मेटोगोनिया रेस्पॉन्सिबल है, सो नोन एज sperm mother cell. And Sertoli cells, it helps in nourishment of newly formed cells, so this is also called as nurse cell. जैसा नर्स देखभाल करती है, सेम हियर Sertoli cell nourishment provide का काम करती है. So this is all about fear it does it occur and the cell responsible for formation of it. Now we are going to see how it occurs, the process. The process of what? The process of formation of sperm. Of formation of sperm. The process of formation of sperm. तो हमारे पास क्या है? Sperm mother cell, spermatogonia, spermatogonia, spermatogonium. In singular it is a spermatogonium, in plural spermatogonium. Spermatogonia की ploidy कैसी है? As all of you know, all cells of human being are diploid in nature except germ cells. तो ये भी कैसा होगा? Diploid. Diploid को हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं. n सेट 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब हर एक क्रोमोसोम्स का दो सेट होगा, एक पेयर. अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है खुद को, मल्टीप्लाई देमसेल्स बाय माइटोसिस, एंड इंक्रीजेस देयर नंबर. तो बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया बन गया, बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया बन गया. ये स्पर्मेटोगोनिया खुद को डिफरेंशिएट करता है, differentiate and divide by what? Divide by mitosis हुआ, बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया बना, उसका भी प्लॉइडी 2n डिप्लॉइड है. अब ये डिफरेंशिएट मतलब हम लोग 3-4 लोगों का ग्रुप है, कहीं टूर पे जा रहे हैं और हमने अपना लगेज वगैरह सब पैक कर लिया. नाउ आई कैन से आई एम डिफरेंशिएटेड वन, आई एम रेडी टू गो. सो हियर डिफरेंशिएटेड मतलब स्पेशलाइज्ड होना, किसी भी काम को करने रेडी टू डू. तो डिफरेंशिएट होके ये क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. डिफरेंशिएट होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिफरेंशिएट होके ये बन गया. इसकी भी प्लॉइडी कैसी है? 2n. माइटोसिस हो रहा है,
क्रोमोसोम्स का नंबर सेम है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में अब मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा और 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, 2 सेल। अब मियोसिस हम लोग जानते हैं रिडक्शनल डिवीजन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधा हो जाएगा। ये सेल कैसे बन जाएंगे, हैप्लॉइड, आधा सेट क्रोमोसोम इसमें, आधा सेट क्रोमोसोम, एक एक सेट दोनों में, आधा आधा क्रोमोसोम बट जाएंगे। अब यह क्या बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहां पे मियोसिस का सेकेंड फेज होगा, दैट इज मियोसिस 2, मियोसिस 2। मियोसिस कंप्लीट करके ये क्या बनाएंगे, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स। मियोसिस 2 कैसा है, लाइक माइटोसिस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह जाते हैं, यहाँ n/2 नहीं होगा, हाफ नहीं होगा, सेम रह जाएंगे जैसा कि माइटोसिस में था, 2n तो 2n ही रह गया। हमने क्या देखा, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट हुआ, डिफरेंशिएट होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी डिप्लॉइड है, और मियोसिस करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी का डिप्लॉइड, प्लॉइडी कैसा है, हैप्लॉइड। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, कौन सा डिप्लॉइड है, कौन सा हैप्लॉइड है। तो प्राइमरी, प्राइमरी मतलब फर्स्ट, एक है तो 2 होगा, और सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब 2, 2 है तो 1 होगा, 1 तो 2, 2 तो 1। और मियोसिस कंप्लीट करके स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड बेसिकली स्पर्म से ही है, बस इनमें फाइनल मैच्योरेशन नहीं हुआ, साइटोप्लाज्म कुछ ज्यादा है, टेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो ये फाइनल डिफरेंशिएशन करेगा, फाइनल मैच्योरेशन, जिसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस करके ये क्या बनाएगा, फाइनल स्पर्म सेल, फाइनल स्पर्म सेल्स। अब इसमें क्या हुआ, टेल का फॉर्मेशन हो गया, एक्रोजोम्स अपवार्ड मूव कर गए, साइटोप्लाज्म कुछ कम कर गया, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल हो गए। अब यह फाइनली स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। अब यह स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ न्यूट्रिशन के लिए सर्टोली सेल्स के पास जाता है, और इसका हेड सर्टोली सेल्स में इस तरह एम्बेडेड हो जाता है, और जब नरिशमेंट पूरा हो जाता है, ये सर्टोली सेल से सेमिनिफेरस टिब्यूल के ल्यूमेन में रिलीज हो जाते हैं, ल्यूमेन जो एम्प्टी स्पेस है बीच में, उसमें रिलीज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। The release of spermatozoa or sperm cell from Sertoli cell to the lumen of seminiferous tubule known as spermiation. So this is how it occurs. Now we are going to take a quick revision. Quick revive करते हैं इसको. Testes, testicular lobules about 215 number, and seminiferous tubule within it, which is the site of formation of sperm. Seminiferous tubule में बहुत सारा सेल। इस सेमिनिफेरस टिब्यूल के डायग्राम को एनसीईआरटी कुछ इस तरह से दिखाया, लाइक दिस। सेमिनिफेरस टिब्यूल के बेस पे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस करके, और मियोसिस कंप्लीट करके स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ डिफरेंशिएट होके मैच्योर होके फाइनल स्पर्म का फॉर्मेशन। सो Sertoli cells be in between spermatogonia. So this is the same diagram about this. NCERT ने भी Sertoli cell seminiferous tubule में sperm का डेवलपमेंट दिखाया है। Now how it occurs? Spermatogonia मल्टीप्लाई किया खुद को, डिफरेंशिएट करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस कंप्लीट करके स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड फाइनल स्पर्मेटोजोआ, और ये डिफरेंशिएशन हो रहा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह जाएंगे,
तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ और ये स्पर्म रिलीज हो गए जब सर्टोली सेल से ल्यूमेन में स्पर्मिएशन। इस डायग्राम को एनसीईआरटी इस तरह से दिखाया। स्पर्मेटोजोआ माइटोसिस डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस कंप्लीट करके पहले तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर कंप्लीट करके स्पर्मेटिड्स, देन फाइनल मैच्योरेशन के बाद स्पर्मेटोजोआ। दिस इज नाउ। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं, द बेस्ट पॉइंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर। कंक्लूजन, द फाइनल पॉइंट और पॉइंट्स टू रिमेंबर। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म मदर सेल, इससे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ स्पर्मेटोगोनिया से। और प्रोसेस में यहां एक डाउट आ जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस सिंगल स्टेप प्रोसेस है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनाने का, और स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट प्रोसेस है स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म मदर सेल से स्पर्मेटोजोआ बनाने का। So is it clear? ठीक है? So this is all about today's class. In next class we are going to discuss hormonal control of spermatogenesis. So thanks guys. Have a nice day.